Namaste Gurukulians. I hope you all are fit and fine. Beta, today we are going to discuss the next topic, that is heating effect of electric current. Same topic you have studied in class 10, that whenever the current passes through a conductor, then it produces heat across that conductor. And this phenomena is known as heating effect of electric current. Now the question comes, why heating takes place across that conductor when electric current passes through it? And this question we will look in this video and we will find the answer for that. Clear? And beta, after that we will do the expression for heat energy across that conductor when current passes through it. Then we will go on the concept of power and energy. Clear? So beta, first, heating effect of current, the phenomena of production of heat across the conductor when current passes through it. Okay beta, if you look at the conductor, there are large number of electrons which are moving randomly inside the conductor, and when we apply the potential across that conductor, then what happens? This is a conductor. Beta, inside the conductor, when electrons become free, there are kernels or positive ions inside the conductor. Suppose these are the kernels. And beta, electrons are moving randomly in all directions. But due to electric field, when we apply the potential, the randomly motion of electron becomes pronounced. तो उनका जो रैंडम मोशन होता है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. तो वो करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक टू द कर्नल्स very fastly, and these positive ions or kernels gain the energy from these electrons and they start vibrating about their mean position, and it is a cause of raising the temperature of this conductor. Clear? So beta, due to collisions of electrons with positive ions, ions gain energy and they start vibrating about their mean position, and it is a cause of raising of temperature across conductor. Clear? So beta, now the question comes, what is the value of that heat energy which is produced across that conductor when current is there? So beta, in the next we will derive the expression for that heat energy. Clear? So potential B, ठीक है बेटा, I is the current in the circuit. बेटा कंडक्टर है, कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस R होगा. क्लियर? सो यहां से जो एनर्जी Q चार्ज को मिलेगी, वो उस एनर्जी से चार्ज क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा. ठीक है, यदि ये प्योरली रजिस्टिव सर्किट हुआ, मींस जो यहाँ पर मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, यदि वो प्योरली रजिस्टिव हुआ तो जितनी एनर्जी Q को ये सेल दे रहा है, तो सारी की सारी एनर्जी इस प्योरली रजिस्टिव डिवाइस के अक्रॉस खर्च हो जाएगी, विच विल बी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट. क्लियर? एंड दैट विल बी द हीट एनर्जी अक्रॉस दैट कंडक्टर. ओके, लुक.
expression for heat energy. Okay beta, this is the appliance having resistance R and we have connected it with a cell having potential difference V and I is the current in the circuit. Clear? So beta, here charge flowing in circuit is equal to I into T. ये बात क्लियर है? Okay, this cell is giving the energy to this charge so that it can revolve in the circuit. So beta, energy delivered by source to charge Q is equal to Q into V. Clear? Okay beta, if this appliance is purely resistive, if circuit is purely resistive, then what happens? This whole energy will be dissipated across this device in the form of heat energy. However, if circuit is purely resistive, then whole energy will be dissipated across device. Clear? In form of heat energy. So beta, for time t, ओके, यहाँ पर एनर्जी डिलीवर्ड क्यू इंटू वी, क्यू को क्या लिख सकते हैं आई टी, तो ये बन जाएगा वी आई टी. सो बेटा, फोर टाइम टी द हीट एनर्जी अक्रॉस दिस डिवाइस विल बी इक्वल टू वी आई टी. क्लियर? ओके बेटा, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ वी according to Ohm's law, it is equal to IR. So H will become I square R into T. ठीक है, तो हम इसको एक और तरह से बता सकते हैं, वी आई टी आई स्क्वायर आर टी. यदि मैं आई की वैल्यू को वी अपॉन आर लिखूँ तो इट विल बिकम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी. क्लियर? सो मेरे पास यहाँ पर हीट एनर्जी के तीन एक्सप्रेशन आ गए, वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर आर इंटू टी. बेटा यहाँ पर ये ध्यान से देखना, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी. ये फेमस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है, विच स्टेट्स दैट वेन एवर द करंट इज पासिंग थ्रू अ रेजिस्टेंस आर, देन इन टाइम टी द हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, directly proportional to resistance of the device which we have connected, and heat energy directly proportional to time t for which we are passing the current in the circuit. So Joule's law of heating, H equal to I square R into T, that is H proportional to I square, H proportional to R, H proportional to time T. क्लियर? और एक और बात का ध्यान रखना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ H proportional to I square. This is possible when R and T both are constant. If I write H proportional to R, it means I square and T both are constant term. In the same way, if I write H proportional to T, it means I square and R, these term are constant. क्लियर? और इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. क्लियर? ओके बेटा, नाउ वी हैव द कंसेप्ट ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बेटा पावर क्या होता है? यदि मैं 9th की बात करूं, हमने पावर पढ़ा था रेट ऑफ
doing work. Clear? In 10th you have studied in the chapter electricity, power होता क्या है? The rate of dissipation of energy, कि किस रेट पर एनर्जी डिसिपेट हो रही है. तो P इक्वल टू E अपॉन E डिवाइड बाय T. ठीक है. So beta, next we have power. The rate of dissipation of energy. That is, we can write P equal to E upon T. बेटा एनर्जी डिसिपेशन के हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, VIT, I स्क्वायर आर टी और V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी. सो बेटा E अपॉन टी. क्लियर? सो फ्रॉम हियर वी हैव पावर इज इक्वल टू VI इक्वल टू I स्क्वायर आर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर. तो यहाँ पर तीन फॉर्मूले हमारे पास है. यदि आप इस फॉर्मूले में देखो I स्क्वायर आर है, तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है. लेकिन इफ यू लुक एट दिस फॉर्मूला हियर, पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. बेटा यहाँ पर ध्यान से देखना, पावर प्रोपोर्शनल टू आर है इफ I इज कांस्टेंट. पावर प्रोपोर्शनल टू 1/r है इफ V इज कांस्टेंट. क्लियर? तो मैं यहाँ पर एडवाइस आपको दूंगा, I स्क्वायर आर आप तभी यूज किया करें वेन एवर द सर्किट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन you should use this formula because in the parallel combination the potential remains same. ठीक है? ओके बेटा, पावर इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम. द SI यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, टाइम सेकेंड, एंड द SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. So I can write 1 watt is equal to 1 joule per 1 second. यदि मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ कि डिवाइस की जो पावर है वो है 20 वॉट, इट मीन्स डिवाइस के अक्रॉस 20 जूल एनर्जी डिसिपेट हो रही है इन 1 सेकेंड. ठीक है? ओके बेटा, यदि आप कमर्शियल यूज़ में देखो पावर की यूनिट, आपके घरों में जैसे इलेक्ट्रिक मोटर होती है, आप उसको लिखते हो HP में कि 1 HP पावर मोटर है, 2 HP पावर मोटर है. तो ये HP क्या, हॉर्स पावर. तो बेटा यदि मैं कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर की बात करता हूँ तो हमारे पास है HP हॉर्स पावर एंड इट इज इक्वल टू 746 वॉट. क्लियर? ओके बेटा, नेक्स्ट आई हैव एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, द एनर्जी सप्लाइड बाय अ सोर्स ऑफ EMF E टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट. इसका मीनिंग समझे अब क्या है. बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, जो भी सोर्स हमने सर्किट में लगाया होता है जिसका EMF E है, वो चार्ज को क्या देती है, एनर्जी देती रहती है लगातार, सो दैट चार्ज कैन रिवॉल्व. यदि चार्ज रिवॉल्व कर रहा है इट मीन्स करंट इज देयर. तो उस करंट को मेंटेन करने के लिए जितनी एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता है, दैट एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्लियर? सो आई एम राइटिंग द एनर्जी delivered by source of EMF E to maintain the current in the circuit. और बेटा एनर्जी E and it is equal to power into time. ठीक है? So
ये तो हम पहले देख चुके हैं, एनर्जी के 3 एक्सप्रेशन है, पावर के भी हम 3 एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं, वी आई आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। इनको टी से मल्टीप्लाई कर दो, एक्सप्रेशन किसके लिए आ जाएंगे, एनर्जी ई के लिए, ठीक है। ओके बेटा, यदि मैं इसकी ऐसा यूनिट की बात करता हूँ, एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होती है, इट इज़ क्लियर टू ऑल, क्लियर। यदि मैं पावर को वोट में लिखता हूँ, टाइम को आर में लिखता हूँ, यदि थोड़े बड़े स्केल पर चलूँ तो इट विल बिकम वोट आर, क्लियर, वाट आर, clear. But in the commercial scale the unit of energy is kilowatt hour, which is very important and you have to remember this. बेटा जब भी मैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करता हूँ तो वो हम लिखते हैं किलोवाट आवर। सो कमर्शियल यूनिट इज किलोवाट आवर। बेटा जो आपके घरों में मीटर लगे होती हैं उसमें हम कहते हैं कि 1 यूनिट, 2 यूनिट या 5 यूनिट निकल गई, 200 यूनिट्स निकल गई, तो 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 1 किलोवाट आवर। जैसा आपके मान लो घरों में एक बल्ब है, क्लियर, उसकी रेटिंग है 100 वोट की। यदि मैं उसको 10 आवर्स के लिए कंटिन्यूसली उसको बर्न करता रहूँ, ऑन मैंने कर दिया उसको, तो इन 10 आवर द एनर्जी विल बी इक्वल टू 100 वॉट इंटू 10 आवर्स, इट विल बिकम 1000 वॉट आवर। इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लो तो इट विल बिकम 1 किलोवाट आवर, क्लियर। तो इसका मीनिंग समझे कि वहाँ पर उस बल्ब ने 1 यूनिट रीडिंग आपके मीटर में निकाल दी है, क्लियर। इसका मीनिंग है जब कोई भी डिवाइस 1 किलोवाट आवर को कंज्यूम करता है, क्लियर, तो वहाँ पर वो कितनी यूनिट्स निकालता है, 1। लुक, suppose you have a bulb of 100 watt, operates 10 hours per day. Calculate cost of energy for 1 day if cost of 1 kilowatt hour is 3 rupees. बेटा 1 बल्ब है 100 वोट का, ऑपरेट करता है 10 आवर्स पर डे, तो इन 1 डे एनर्जी कितनी ले गया, P इंटू टी, पावर 100 वाट into 10 hours, it will become 1000 watt hour, so 1 kilowatt hour, ठीक है। और 1 किलोवाट एनर्जी की कॉस्ट कितनी है, 3 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ एनर्जी, हमारे पास एनर्जी कितना आया, 1 किलोवाट आवर, सो कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज 3 रुपीज, क्लियर। ठीक है, तो यहां पर कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितना आ गया, 3 रुपीज। नाउ बेटा अब हमारे पास 3 क्वेश्चन आते हैं पावर से रिलेटेड। एक तो मीनिंग होता है कि पावर रेटिंग क्या होती है, ये क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड, यदि मेरे पास 3 बल्ब्स हैं, इफ आई कनेक्ट देम इन सीरीज और इन पैरेलल, देन द डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर नेट पावर, ठीक है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जा चुका है इन 3 मार्क्स। सो बेटा लुक, पावर रेटिंग। बेटा पावर रेटिंग के लिए मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं, एक बल्ब का। जब भी बल्ब आप देखोगे उसके ऊपर रेटिंग लिखी होती है कुछ इस तरीके से, 100 वॉट, 220 वोल्ट। तो जब भी आपको इस प्रकार की रेटिंग मिले, इसका मीनिंग समझे अब क्या, व्हेन दिस बल्ब इज ऑपरेटेड एट 220 volt, then it consume 100 watt at
220 volt it consumes 100 watt, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, ओके बेटा। अब आपके पास जितने भी बल्ब्स मैं यहाँ पर शो करूँगा, हर एक बल्ब की पावर रेटिंग आपको मिलेगी V के लिए। इसका मीनिंग है सब बल्ब के लिए जो वोल्टेज की रेटिंग है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। या मैं उसको पैरेलल में कनेक्ट करूँ या मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूँ। सो बेटा इनिशियली व्हेन bulbs are in series combination, so we have to calculate the expression for net power. So beta look, first bulb, second bulb, clear? इसकी पावर रेटिंग है P1, V. पावर रेटिंग ऑफ सेकंड बल्ब इज P2, V. It means both are operated at same voltage and we have to calculate the net power of this circuit. बेटा यहाँ पर करंट कितना है, I. यदि मैं यहाँ पर एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करूँ तो सेम करंट विल फ्लो अक्रॉस दिस डिवाइस। तो बेटा इन द सीरीज कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2. Is it clear? Beta, if you look at the expression of power, power is equal to V square upon R. So from here R equal to V square upon P. So R equivalent is equal to V square upon power equivalent. ठीक है, R1. R1 is the resistance of first bulb. So it will become V square upon P1. क्योंकि पहले बल्ब की पावर कितनी है, P1 प्लस V square upon P2. So V square will get cancel out, तो 1 by P equivalent is equal to 1 by P1 plus 1 by P2. ठीक है बेटा, यदि आप एक्सप्रेशन को देखो, जब हम रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तब भी तो 1 by R इक्विवेलेंट 1 by R1 plus 1 by R2 आता है। इसी तरीके से when the bulbs are connected in series combination, सो पावर का भी उसी तरह एक्सप्रेशन आता है, 1 बाई P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2। इफ देर आर 3 बल्ब्स देन 1 प्लस P3, 1 बाई P3 इसमें ऐड हो जाएगा। सो बेटा 4 N बल्ब्स 1 बाई P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 प्लस 1 बाई P3 सो 1 बाई Pn। ठीक है, ओके बेटा। इफ ऑल आर आइडेंटिकल, सो 1 बाय P इक्विवेलेंट विल बिकम 1 बाय P प्लस 1 बाय P n टाइम्स। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, n ओवर P। सो P इक्विवेलेंट विल बिकम P ओवर n। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे केस ले सकते हैं। बेटा ये तो केस है फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। इफ आई कनेक्ट देम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन व्हाट विल बी द नेट पावर। ओके बेटा, इन सभी के लिए केवल आपको एक एक्सप्रेशन याद कर लेना है, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। जो बाकी बचा हुआ बिल्कुल आसान हो जाता है, वो देखेंगे। सेकंड, व्हेन बल्ब्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटा यदि लास्ट 5 to 6 ईयर क्वेश्चन में आप देखो सीबीएसई के, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर में से एक ही क्वेश्चन पूछा गया, वो ये है कि व्हेन द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर नेट पावर। बेटा यहाँ पर ध्यान से देखना, आई एम टेकिंग द केस ऑफ 3 बल्ब्स।
1, 2 and 3. These are connected with power supply of having potential difference V. Okay बेटा, power rating P1, V, P2, V, P3, V. I is the current in the circuit. Beta, these are in parallel combination. If R1, R2 and R3 are the resistances of bulb 1, 2nd and 3rd respectively, then for the parallel combination I can write 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Is it clear? Okay beta, now look, P equal to V square upon R. So beta, 1 by R is equal to P upon V square. So beta, 1 by R equivalent will be equal to P equivalent divided by V का square equal to 1 by R1 P1 upon V square, क्योंकि V तो सेम है, तो P1 upon V square. In the same way 1 by R2 P2 upon V square plus 1 by R3, it is equal to P3 upon V square. And from here V square will get cancel out and P equivalent becomes P1 plus P2 plus P3. For n bulbs it will become P1 plus P2 plus P3 up to Pn. Beta, if these bulbs are identical, if identical bulbs are there, बेटा आइडेंटिकल बल्ब का मीनिंग क्या है? जो उनकी पावर है वो क्या है? सेम. तो सबकी पावर P मान लो, कितने टाइम्स है? n टाइम्स. सो P इक्विवेलेंट विल बिकम n इंटू P. ठीक है. सो बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में आता है, क्योंकि आप यदि लास्ट 5 to 7 ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखो तो केवल इस टॉपिक में से एक ही कंटेंट आया है, दैट इज कैलकुलेट द इक्विवेलेंट पावर व्हेन द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है बेटा. ओके बेटा, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक्स नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स. एक न्यूमेरिकल हम करेंगे कि दो बल्ब मेरे पास है 25 वोल्ट का और 100 वोल्ट का, विच हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस. इफ आई कनेक्ट देम इन सीरीज और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन विच विल ग्लो ब्राइटर. बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये इन 1 or 2 मार्क्स दे कैन बी आस्क्ड. Okay beta, look, we know very well that P equal to V square upon R. ये तो सभी को पता है. ठीक है. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? R equal to V square upon P. For same V, R is proportional to 1 by P if V is constant. Is it clear? So beta, now I have two bulbs of 25 watt and 100 watt. बेटा मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जब भी मैं बल्ब की बात करता हूँ तो उनके लिए जो वोल्टेज रेटिंग होती है इट इज सेम. सो दोनों के लिए वोल्टेज रेटिंग क्या है? सेम है. सो आर प्रोपोर्शनल टू 1 by P. ठीक है बेटा. तो जिस बल्ब के लिए पावर कम होगी उसके लिए रेजिस्टेंस क्या बनेगा? हाई. सो बेटा P25 watt इज लेस देन P100 watt. पावर इस बल्ब की ज़्यादा है. ठीक है. इट मीन्स R25 वोट इज ग्रेटर देन R100 वॉट. ये हम यहां से निकाल चुके हैं. तो याद रखना, जिस बल्ब की पावर कम होगी द रेजिस्टेंस फॉर दैट बल्ब विल बी ग्रेटर. ठीक है. ओके बेटा, अब मैं इसी के ऊपर दो क्वेश्चन आपको करवाता हूं. पहला, इफ आई कनेक्ट देम इन सीरीज कॉम्बिनेशन 100 watt, I is the current in series combination. Now my question is that which bulb will glow brighter? Which bulb will glow brighter?
बेटा जिसके क्रॉस हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा दैट बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। इट मीन्स इन बल्ब के लिए हम क्या निकालेंगे, एच की वैल्यू, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं एच के लिए बता चुका हूँ, आप ये फॉर्मूला को यूज़ किया करें। बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो, करंट की वैल्यू क्या है, सेम, और दोनों बल्ब के क्रॉस करंट सेम टाइम के लिए फ्लो करता है, तो टी भी कॉन्स्टेंट है। इट मीन्स वी कैन से एच प्रोपोर्शनल टू आर। इज इट क्लियर? एंड वी नो वेरी वेल दैट आर 25 वोट इज ग्रेटर देन आर 100 वोट। तो इसका मीनिंग क्या है, हीटिंग इफेक्ट फॉर 25 वोट बल्ब इज ग्रेटर देन हीटिंग इफेक्ट फॉर 100 वॉट बल्ब। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना और अपने आप भी ट्राई करना एक बार। ये देखने में थोड़ा अटपटा लगता है कि कम वोल्टेज वाला जो बल्ब है वो ज़्यादा ग्लो करेगा, लेकिन माय डियर जो भी आप घरों में देखते हो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हो। आपके मन में क्या आता है कि 0 वाट का बल्ब होता है, इट इज़ अप्रोक्सीमेट ऑफ 5 वॉट। 0 वाट का बल्ब और जो 100 वोट बल्ब है, 100 वोट बल्ब आपको ज़्यादा ग्लो करता हुआ दिखाई देता है बेटा, लेकिन वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? ओके बेटा, अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि इफ दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बेटा पावर रेटिंग इसकी मान लो 25 वोट 100 वॉट। तो बेटा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आई एम आस्किंग दैट विच वन विल ग्लो ब्राइटर। ठीक है बेटा, आप ध्यान से देखना एक बार, पैरेलल कॉम्बिनेशन में H की वैल्यू हम लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ठीक है, अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन में V की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। T दोनों बल्ब के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सेम टाइम के लिए यदि करंट इसके क्रॉस फ्लो कर रहा है तो सेम टाइम के लिए इसके क्रॉस भी तो करेगा। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट H प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो जिस बल्ब के लिए रेजिस्टेंस कम होगा उसके लिए H क्या होगा, हाई। ठीक है, सो बेटा R100 इज लेस देन R25 वॉट। क्लियर? इट मीन्स H 100 वॉट इज ग्रेटर देन H 25 वॉट। क्लियर? तो तीन चीजें अब यहां पर ध्यान रखिए। पहला, द बल्ब विच हैज लेस पावर दैट बल्ब हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस। सेकेंड, इन सीरीज कॉम्बिनेशन लेस पावर बल्ब विल ग्लो ब्राइटर एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आपके घरों में होता है हाई पावर रेटिंग बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। ठीक है बेटा? ओके नाउ, अब हमारे पास दो सिंपल टॉपिक्स रहते हैं, एक तो एफिशिएंसी ऑफ अ सोर्स और एक रहता है मैक्सिमम पावर थ्योरम। ओके बेटा, नाउ efficiency of source of EMF। बेटा आपके पास ये रजिस्टर R है, दिस इज द सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R and EMF E। I is the current in the circuit। देन बेटा एफिशिएंसी ऑफ द सोर्स ऑफ EMF, एफिशिएंसी रिप्रेजेंट किया जाता है ईटा से। ईटा इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। बेटा आउटपुट पावर की बात करूं, जब सर्किट क्लोज होता है देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द सेल इज V, और वही पोटेंशियल इस R के क्रॉस होगा। तो आउटपुट तो हम इसी के क्रॉस ले रहे हैं ना, इसको पोटेंशियल कितना मिला, V। इज इट क्लियर? एंड करंट कितना है सर्किट में, I, तो VI, कैन आई राइट? एंड बेटा इनपुट पावर, इनपुट इनिशियल पोटेंशियल कितना था इसके पास, E, जितना वो दे सकता था, E इंटू I, ये पावर होगा इनपुट। सो बेटा इट इज इक्वल टू V अपॉन E। यदि आप सेल के टॉपिक को दोबारा से रिमाइंड करो, V
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये, और इसकी वैल्यू क्या होती है I इंटू कैपिटल R, एंड EMF E की वैल्यू I इंटू R प्लस कैपिटल R. सो एफिशिएंसी बिकम्स R डिवाइड बाय R प्लस R. ठीक है. सो बेटा जब भी आपको किसी सोर्स की एफिशिएंसी निकालनी हो जिसका EMF E है, then you require the value of capital R and small r, where capital R is the resistance of external device and small r is the value of internal resistance of the cell. Clear? Okay, now beta the last topic of this lecture is maximum power theorem. उसके लिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे. यहाँ पर बेटा करंट आई है रेजिस्टेंस R के अक्रॉस, EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R. तो मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहती है? मैक्सिमम पावर है, इट मीन्स ये थ्योरम हमें मैक्सिमम पावर के बारे में बताएगी. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द पावर डिलीवर्ड बाय दिस सोर्स विल बी मैक्सिमम इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस. मीनिंग क्या है बेटा? ये जो सोर्स आपने लगाया जिसका EMF E है, ये मैक्सिमम पावर डिलीवर तब करेगा जब जो वैल्यू इस R की होगी, कैपिटल R की, वही वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस की बन जाए. ठीक है. सो बेटा मैक्सिमम पावर theorem, according to it power delivered by source of EMF E is maximum if the value of external resistance R becomes equal to internal resistance. या आप ये भी लिख सकते हैं इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R becomes equal to इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r. ठीक है. ओके बेटा, पावर, सबसे पहले पावर का एक्सप्रेशन निकालते हैं. पावर क्या होता है? I स्क्वायर R. ठीक है. सबसे पहले करंट निकालो इस सर्किट में. करंट कितना आएगा? EMF E डिवाइड बाय R प्लस R. हमें पहले भी कर चुके हैं, करंट पहले भी निकाल चुके हैं. करंट की वैल्यू E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R स्क्वायर इंटू R. सो बेटा ये बन गया E स्क्वायर R डिवाइड बाई R प्लस R का स्क्वायर. बेटा पावर विल बी मैक्सिमम इफ R प्लस स्मॉल r स्क्वायर इज मिनिमम. सो बेटा यहां पर मैं कंडीशन निकालूंगा कि कब R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर मिनिमम होगा. सो बेटा R प्लस R स्क्वायर कैन आई राइट इट एज कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस, ये देखना चेक करना एक बार, इसकी वैल्यू भी यही आएगी. सो बेटा इट विल बी मिनिमम इफ दोनों में से कोई भी टर्म जीरो हो जाए. बेटा कोई भी टर्म जीरो हो गई तो वैल्यू कुछ ना कुछ तो कम होगी. तो मिनिमम ये कितना आ सकता है? या तो ये वैल्यू जीरो या ये वैल्यू जीरो. ये वैल्यू तो जीरो हो ही नहीं सकती, प्रोडक्ट में है. कैपिटल R की कुछ वैल्यू होती है, स्मॉल r की भी कुछ वैल्यू है, तो ये वैल्यू तो जीरो हो सकती है इफ कैपिटल R माइनस स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू जीरो. इट मीन्स R माइनस स्मॉल r इक्वल टू जीरो. इट मीन्स R इक्वल टू स्मॉल r. ठीक है. सो बेटा यदि मैं इस एक्सप्रेशन को यहां पर पुट करूं, पावर आउटपुट, पावर आउटपुट कितना है? E अपॉन दिस वन
इफ आर इक्वल टू आर देन पावर क्या बन जाएगी, मैक्सिमम। सो ये बन जाएगा ई अपॉन आर प्लस आर, 2r, तो 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर इंटू आर, तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू आर। क्लियर? सो बेटा it is all about your concept of maximum power theorem. So beta with it I am ending this lecture, but in the next lecture we will study about the very important concept that is Kirchhoff laws. बेटा अभी तक आपने ये सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस किया है, वहाँ पर हमें ये पता लग जाता था कि दिस रजिस्टर्स आर इन पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, बट what happens when we will not sure about the circuit whether it is series or parallel, or if we have complex circuit where it is very difficult to judge the resistors whether they are in series or in parallel, वहाँ पर हम क्या करते हैं, किरचॉफ लॉ का यूज़ करते हैं। और यदि बेटा कोई सर्किट ऐसा आ जाए जो ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हो ना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? उसको कैलकुलेट करने का तरीका है विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ। ठीक है बेटा, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू इट। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।